پاکستان تحریک انصاف لندن کی جانب سے عمران خان کے قریبی ساتھی سینیٹر فیصل جاوید کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں ملک بھر سے پی ٹی آئی کے عہدیداران اور کارکنان شریک ہوئے۔ اس موقع پر سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا عمران خان اپنی مدت پوری کریں گے، اگلی بار بھی پی ٹی آئی کی ہے۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کی پہچان ہے آپ، پاکستان کے کپتان ہیں آپ، عمران خان ہے۔ لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی اور پی ٹی آئی کے اہم رہنما سینیٹر فیصل جاوید خان کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں پی ٹی آئی کارکن اور عہدیدار بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ عشائیے کا اہتمام پی ٹی آئی یو کے سینئر رہنما حافظ توصیف، جہاں زیب خان، محمد زاہد راجہ، چودھری محمد ریاض کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر فیصل جاوید خان نے کہا کہ اپوزیشن کل نہیں آج تحریک عدم اعتماد لے آئے، اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ عمران خان 2023 تک وزیر اعظم رہیں گے اور اگلے الیکشن میں بھی 2/3 اکثریت حاصل کریں گے۔ اپوزیشن کی یہ تحریک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی کرا لیتے ہیں تو عمران خان پہ سے عمران خان کا سیٹ کے ساتھ رشتہ کوئی نہیں ہے۔ عمران خان کا رشتہ اس قوم کے مستقبل کے ساتھ ہے اور وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جو کام ہوئے ہیں اس کارکردگی کی بنا پر عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی لے کر واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوگا، عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس پارلیمنٹ میں آئیں گے۔ مہنگائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی ہے، لیکن اب حالات بہتر ہو رہے ہیں، اگلے کچھ ماہ میں ہم مہنگائی پر قابو پا لیں گے۔ اور اکانومسٹ کے آپ کے سامنے ابھی لیٹسٹ آیا ہے کہ لگاتار 3 سال پاکستان ٹاپ 3 کنٹریز میں آیا ہے۔ ہیٹرک کی ہے پاکستان نے، جنہوں نے تیزی سے ریکور کیا ہے کووڈ میں۔ بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے یہ اب سسٹینیبل گروتھ ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے غربت کے خاتمے اور دیگر جو بھی بات بھی ہو رہی تھی ساس پروگرام اور سب کی وجہ سے تعریف کی ہے پاکستان کی کہ بہترین ہے۔ ہماری ریکارڈ ریونیو کلیکشن ہے اس وقت، ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس ہیں، ریکارڈ ہماری ریمیٹنسز اوپر جاتے ہیں، آپ سب کو اس کا بہت کریڈٹ جاتا ہے۔ ہماری ایکسپورٹس گروتھ کی بات ہوئی، ایک پرابلم ہے اور یہ پہلی حکومت ہے عمران خان کی جو خود کہتی ہے کہ ہاں مہنگائی ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ اگر نواز شریف کو NRO دے دیا جائے تو وہ فوری طور پر صحت مند ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، کوئی کہیں بھی نہیں جا رہا۔ تقریب میں دیگر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی کو اجاگر کیا۔ کشمیر کا ایشو ہو یا اور ہمارے پاکستانی میٹرز ہوں، ہم نے لابنگ نہیں کی اور انڈیا ہم سے اس معاملے میں بہتر رہا ہے۔ انہوں نے لابنگ کی ہے، وہ اس کے اوپر باقاعدہ امریکہ میں یہاں پہ لابنگ کرتے ہیں، ہم نے نہیں کی۔ مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں پالیٹکس کے حوالے سے اگر اسٹوڈنٹ ہوں تو میں بات کروں گا کہ صرف بے نظیر کامیاب ہوئی جب انہوں نے مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، کونڈولیزا رائس اور یہاں سے جو وہ تھے اس وقت کے وزیر خارجہ، ان کے ساتھ مل کے تو وہ کامیاب ہوئی، وہ لابنگ کا نتیجہ۔ تقریب میں سینیٹر فیصل جاوید خان نے میڈیا سے بات چیت بھی کی اور صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ عشائیے میں وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان برائے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ UK اینڈ یورپ صاحبزادہ عامر جہانگیر، جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی UK اسلم بھٹا، صدر پی ٹی آئی لندن میاں وحید الرحمان، چیئرمین IBPC چودھری رضوان سلیریا، مشتاق لشاری، رومی ملک اور دیگر کمیونٹی رہنما اور پی ٹی آئی کے عہدیدار بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس پر باتیں کرنے والے لوگ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں۔ تحریک عدم اعتماد لانے والے عنقریب ایک دوسرے پر عدم اعتماد کر دیں گے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بہترین خارجہ پالیسی رہی جس کا ساری دنیا اعتراف کر رہی ہے۔ عمران خان نے پاکستان کی خود مختاری کو بحال کیا ہے۔ لندن میں پی ٹی آئی کی تقریب کے دوران 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ یہ شور مچانے والے کون لوگ ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے لیے بہتر سوچنے والے لوگ ہیں؟ بالکل نہیں، جو غلط قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ مثالی تعلقات ہیں تمام ملکوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اور جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی جو کامیابیاں پچھلے 3 سال میں رہی ہیں، تاریخ میں نہیں رہی ہیں، آج دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہم تو ڈوم ہماری حکومتیں کرتی تھیں پہلے، آج وہ ہماری جو عزت نفس ہے، جو خودداری ہے، خود مختاری ہے، اس کو عمران خان نے بحال کی ہے۔ اور رشیا میں 27 سال بعد کسی چیف ایگزیکٹو کا، پرائم منسٹر کا دورہ ہوتا ہے، صدر پوٹن انوائٹ کرتے ہیں، اسکیڈول دورہ تھا۔
अब लोग इस पे क्या चीज़ निकालना चाहते हैं? आज के अमेरिका आज अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, बाकी तमाम मुल्क के साथ, क्या आपने देखा नहीं जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, उसकी कितनी तारीफ़ हुई है? एवैक्यूएशन प्रोसेस में जो कंट्रीब्यूट किया उसमें तारीफ़ हुई है। तो वो ये कहाँ से ये चीज़ें निकाल लेते हैं अपोजिशन वाले, और खामखा ये बात इमरान खान की या पीटीआई की नहीं है, ये बात मुल्क की है, ये बात पाकिस्तान की है। जी, फैसले में कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन आपके करीबी साथी रहे हैं या इस वक्त नाराज चल रहे हैं, खान साहब उनसे मिलना नहीं चाह रहे, तो क्या ऐसा हुकूमत रिस्क पर नहीं चली इस तरह? हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं, पीटीआई के, वो पीटीआई के साथ हैं, और हमारे इत्तेहादी भी हर मैदान में हमारे साथ हैं, हर इम्तिहान में हमारे साथ हैं। और इंशाल्लाह ये जो भी पीडीएम कर ले, ये जो तहरीक अदम एतमाद की अकड़ बकड़ बम्बे बहुत चल रहा है ना, उनको तो समझ ही नहीं आ रही उनके आपस में। आपको पता है मार्च के महीने में इन्होंने एक दूसरे पे अदम एतमाद कर देना है, अपोजिशन वालों ने। मार्च के महीने में, मार्च की 4 तारीख को आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी मिलेगी। बर्मिंघम के नवाही इलाके वॉल्सल में आज़ाद कश्मीर असेंबली के मेंबर चौधरी कासिम मजीद के एजाज़ में साबिक मुशीर राजा फजलुर रहमान ने इस्तकबालिया दिया, जिसमें बरतानिया भर से पार्टी कारकुनान और दीगर जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए। इस मौके पर चौधरी कासिम मजीद ने आज़ाद कश्मीर में तामीर व तरक्की और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से शुरका को आगाह किया। मजीद अहवाल जानिए बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में। हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा। बर्मिंघम के नवाही इलाके वालसल में बड़ी तादाद में चकसवारी, मीरपुर और डडियाल के लोग आबाद हैं। यही वजह है कि यहाँ के बसने वाले आज़ाद कश्मीर की सियासत पर काफी असरअंदाज होते हैं। हल्का चकसवारी से कामयाबी हासिल करने वाले नौमुंतखब MLA चौधरी कासिम मजीद वालसल में अपने वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करने पहुँचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। साबिक मुशीर हुकूमत राजा फजलुर रहमान और राजा गुलाम दस्तगीर ने उनके एजाज में इस्तकबालिया दिया, जिसमें ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ। सदा न सोबत यारा मूरत ने जग पर रेड़ा ना इस सूरत वाले की यराना उसदा जेड़ा सदा परीत ना स्टेज सेक्रेटरी के फराइज PYO के रहनुमा आफ्ताब अहमद ने अदा किए, जबकि इस दौरान मुकामी काउंसलर्स, दीगर जमातों के रहनुमाओं, मुकामी कम्युनिटी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए चौधरी कासिम मजीद को मुबारकबाद दी और उनको ओवरसीज कश्मीरियों के मसाइल से आगाह किया। नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत की, और ये सियासत का बेताज बादशाह है। मैं यूथ के दुश्मनों के साथ अपने भाई का भरपूर इस्तेमाल करूंगा। मेरी मुराद मेरा भाई चौधरी कासिम मजीद वफा निभाई और चट्टान की तरह पार्टी के साथ खड़े रहे। मेरी मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा फजलुर रहमान साहब, उनको वेलकम। सितंबर 1999 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा बर्मिंघम आई तो ये स्टेज सदारत इन्होंने की थी। चौधरी मजीद के साथ वफाक की, उन्हें वजीर आजम आजाद कश्मीर बनाया। उनका हक भी था कि वो ग्रास रूट लीवर से ऊपर गए थे पार्टी में, कोई पार्टी से भाग कर दूसरी पार्टियों से नहीं आए थे। चौधरी कासिम मजीद साहब, हमने अपना फर्ज, मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने ये जवानी इस पीपल्स पार्टी के दिए, लेकिन इंसाफ जिस तरह वही तरह ने कहा कि इन ओवरसीज लोगों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खसूसी नौ मुंतखब मेंबर कानून साज असम्बली चौधरी कासिम मजीद ने खिताब करते हुए कहा कि मसला कश्मीर 1 मिनट की खामोशी से नहीं बल्कि आलमी सतह पर मुनज़्ज़म लॉबिंग करने से ही आलमी तवज्जो का मरकज बन सकता है। जनूबी एशियाई खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन का इन्हिसार मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। चौधरी यासीन साहब, हम जरूर कोशिश करेंगे मिलकर
کہ आप आजाद कश्मीर के लोगों को ज्यादा एडजस्ट करें तंजीम के अंदर, और मेरिट पर होगा। जितने सियासी कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2011 से 16 के अंदर एडजस्ट किए, कोई जमात नहीं कर सकी। नून लीग का भी आपने दौर देखे, 5 साल वो आपने देखे, सियासी कारकुन रोता रहा है। सियासी कारकुन को वज़ीर आज़म हाउस के करीब नहीं जाने दिया जाता था, वज़रा नहीं मिलते थे सियासी कारकुन से, वज़रा को वज़ीर आज़म नहीं मिलता था। चौधरी कासिम मजीद का कहना था, रठोआ हरियाम पुल की तकमील एहसान नहीं बल्कि ये मंगला आप रेजिंग प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है। गुज़श्ता 15 बरस से ताखीरी हरबों से अब लागत 4 अरब से तजावज कर चुकी है। 1 अरब 75 करोड़ पहले उसकी PC1 बना था प्राइस की, अब 4-5 साल डिले होने से वो 4 अरब से ऊपर चला गया है। ये कहने लगे कि इंक्वायरी कमेटियां बनाएं, पहले इंक्वायरियां करते। मैं कहा तुम लोग इंक्वायरियां करोगे, ये 4 अरब से उठ के 16 अरब चला जाएगा। चौधरी कासिम मजीद के खिताब के दौरान फिजा नारों से गूंजती रही। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी कासिम मजीद ने कहा कि अहरपोर्ट पर कश्मीर डेस्क कायम करने के लिए असेंबली में तहरीक लेकर आऊंगा ताकि ओवरसीज कश्मीरियों को अहरपोर्ट पर कोई प्रॉब्लम पेश न आए। MLA बनने के बाद जो मेरी तरजीहात है, बिलखुसूस अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर एजुकेशन सेक्टर को मजीद इम्प्रूव करना, स्ट्रेंथन करना, फीमेल सेक्टर को एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर को यूनियन कौंसिल वाइज और वार्ड वाइज तक हम लेके जाना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश लगा हूँ, मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी। इंसानी हकूक की खुला खिलाफ वर्जी है। 3 साल से वो लोग लॉकडाउन में बिलखुसूस जो पहले भी हो रहा है, आइन को तोड़ा गया है, नस्ल कशी की जा रही है। तो जब सोशल मीडिया पे आवाज़ उठेगी इंटरनेशनली, हमें एज ये है कि हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत सारे बाहर रहते, तो अगर हम इसका भी एडवांटेज ना उठा सकें, खाली देखें एक कॉन्स्टेट के सामने जाकर हड़ताल करना या मुजाहरा करना कोई मायने नहीं रखता। हमें इसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो लोग हमारे MPs हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं या लोकल काउंसिल्स के अंदर बैठे हुए हैं या लॉर्ड मेयर्स हैं हमारे, एक और मतलब बड़ा से काउंसिल से रेजोल्यूशन आनी चाहिए कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर। चौधरी फजलुर रहमान, आफ्ताब अहमद और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कासिम मजीद नौजवान MLA है, उम्मीद है ब्रिटिश कश्मीरी नौजवानों को अपने आबाई वतन के साथ जोड़ने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। आज वर्चुअल के मुकाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MLA जनाब चौधरी कासिम मजीद की रिसेप्शन के लिए एक कामयाब प्रोग्राम रखा गया था। मैं पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से उनको वेलकम करता हूँ और इस बात का अदा करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिए के लिए दिन रात काम करेंगे और भुट्टो शहीद के विजन को लेकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई है और चौधरी मजीद साहब के लाए हुए पौधे आज कामयाब हो रहे हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो वर्क किया था इंग्लैंड में, आज हम सब लोग उनकी वजह से आज दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं और तमाम एक फूल की तरह एक गुलदस्ता बन गए हैं और तमाम साथी एक तरफा सहम उसी तरह हम दोबारा जमहूरियत की बहाली के लिए, मसाके जमहूरियत के लिए हम काम कर रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी प्लांट दिया, 73 का आइन दिया, कादियानियों को काफिर करार दिया। मुझे उम्मीद है कि चौधरी कासिम मजीद मेंबर इलेक्ट होने के बाद उस हल्का इंतखाब के अंदर ना सिर्फ बल्कि मीरपुर के जो की मसाइल हैं, रठुआ, रियाम ब्रिज और दीगर जो मामलात हैं, उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में PPP के सेनेटर रहमान मलिक के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मगफरत भी की गई। कबीरा गुनाह माफ फरमा और उन्होंने जो सरजमीन पाकिस्तान की उनकी खिदमत थी, या अल्लाह उन्हें कबूल और मंजूर फरमा और या अल्लाह इस महफिल में बैठने वाले सबकी खैर फरमा। शुरका ने इवेंट को भरपूर सराहते हुए चौधरी कासिम मजीद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुकामी रिपोर्टर इरफान अहमद फराज के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मजीद खबरें। मारूफ पाकिस्तानी बिजनेस वुमेन आमना मलिक ने दुबई एक्सपो के मौके पर गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद और दीगर हुकूमती वफूद से मुलाकातों के अलावा मारूफ रियल एस्टेट ग्रुप से पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के हवाले से MOU भी साइन करवाया। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई एक्सपो 2020 का मेला तमाम रानाइयों के साथ जारी है। पाकिस्तानी पवेलियन भी गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जहां पाकिस्तानी हुकूमती इदारे सरमायाकारी के हवाले से सरगर्म हैं। वहीं निजी कंपनियां भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इसी सिलसिले में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेस वेमेन आमना मलिक दुबई के दौरे पर हैं। आमना मलिक ने गिलगित बल्तिस्तान के नाम से जारी महीने के दौरान इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की, जहाँ उन्होंने GB के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद और सरकारी हुकाम से मुलाकात की। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत हुई। GB वज़ीर आला से मुलाकात के बाद आमना मलिक ने इमारात के मारूफ रियल एस्टेट ग्रुप के चेयरमैन मोइन चौधरी से अहम मुलाकात की।
दोनों बड़े कारोबारी ग्रुप्स के दरमियान MOU साइन हुआ। MOU के मुताबिक इमाराती ग्रुप पाकिस्तान में ओवरसीज से रियल स्टेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी लाएगा। इस मौके पर आमिना मलिक और मोइन चौधरी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस मुआहिदे के बायस पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे खुले हैं। गैर मुल्कियों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल होगा। वी आर प्लानिंग के यहाँ पे एक बहुत एग्रेसिव लॉन्च करेंगे रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ का, और इसमें हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के ऊपर और जो हमारे लोकल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर बात करेंगे। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी जो हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगी, और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान UAE रिलेशंस के ऊपर भी काम करेंगे। We are very excited about this today's MOU with Melange Real Estate, and we are welcoming them to at Dubai International for international market exposure. And in Parkview City, we have an exclusive right for entire GCC, and we are giving the services all end-to-end transfer and real estate for our Pakistani overseas. आमना मलिक ने UAE के बड़े रियल एस्टेट ग्रुप के हेड ऑफिस का दौरा किया, जबकि GB सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में इमारात में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की और इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी से तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होने जा रहा है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात। POC ग्लोबल वुमेन विंग की सदर डॉक्टर फिरदौस नसीम की सेहतयाबी पर दुबई में मुकीम समाजी और सियासी शख्सियात की जानिब से हस्पताल के अंदर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में अरब समाजी और कारोबारी शख्सियात की जानिब से डॉक्टर नसीम फिरदौस का इलाज कराने वाले डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जानिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। POC ग्लोबल वुमेन विंग की चेयरपर्सन डॉक्टर फिरदौस नसीम, जो कई दिनों से अलालत के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी, गुज़श्ता रोज सेहतयाब होकर घर वापस आ चुकी हैं। उनकी सेहतयाबी की खुशी में POC ग्लोबल और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मारूफ अरब समाजी और कारोबारी शख्सियात हिज एक्सीलेंसी खजीफा इब्राहिम और हिज एक्सीलेंसी वलीद इब्राहिम अल अली भी मौजूद थे, जिन्होंने डॉक्टर फिरदौस नसीम का इलाज करने वाले डॉक्टर्स की हौसला अफजाई करते हुए शील्ड्स दी। What we have witnessed today is not something new in the United Arab Emirates. It is because this is in line with the vision of the wise leadership of the United Arab Emirates. The doctors here, the way they had treated Dr. Firdaus, and now that she is able to go out of the hospital, she's being discharged today, I can see that her condition is really improved. सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और दूसरे नंबर पे NMC के लिए बहुत सारी दुआएं जिस टाइम में आई थी, आई डिडंट सी एनीथिंग, और मुझे ऐसे लगा था कि एक बार मैं अपनी लाइफ को, अपनी आई सेट सब कुछ मैं लॉस कर चुकी हूँ। बट आई एम रियली थैंकफुल टू यू डॉक्टर प्रेचित एंड NMC टीम। इतनी अच्छी केयरिंग और इतनी अच्छी ट्रीटमेंट के बाद आज मैं यहाँ से डिस्चार्ज होके भी जा रही हूँ विदाउट एनी डिफ़िकल्ट या सेंसिटिव सर्जरीज के बिना। डॉक्टर फिरदौस नसीम की इंजरी हमारे लिए बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ थी और बड़ी सीवियर हेड इंजरी थी, लेकिन NMC वालों ने बड़ा उनकी टेक केयर की है, बहुत प्रोफेशनल हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उनका इलाज किया। The fact that she didn't reveal who she was when she came first to my OPD, in fact I didn't know her background till the third day of her admission. Only when the other staff came to know and they told me that this is the situation, I came to know, oh, that speaks volumes of her character. And she has done very well. समाजी और सियासी शख्सियात का इस मौके पर कहना था कि डॉक्टर फिरदौस नसीम कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए पेश रहती हैं और वो अमारात में मुकीम पाकिस्तानी खवातीन के लिए रोल मॉडल हैं। उनकी सेहतयाबी पर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। बहुत जल्द वो फिर समाजी कामों में सरगर्म नजर आएंगी। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में हाल ही में तैनात होने वाले पाकिस्तानी सफ़ीर अमीर खुरम राठौर ने मदीना मुनव्वरा में अहम सऊदी और पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की है और कहा है कि सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान मौजूद तरीन मुल्क है जहाँ सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तान हाउस में सऊदी और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द से मुलाकात के दौरान सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुरम राठौर का कहना था कि पाकिस्तान में आईटी, ज़राअत और सियाहत के शोबे समेत दीगर ऐसे शोबे मौजूद हैं
जहां सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं जिनसे गैर मुल्की बेहतर अंदाज के साथ काम कर सकते हैं। सफीर पाकिस्तान ने सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। सऊदी कारोबारी शख्सियात ने अमीर खुर्रम राठौर के अज़्म को सराहा और कहा कि पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात फरोग पा रहे हैं और सऊदी कारोबारी शख्सियात पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं, जिससे यकीनन दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजबूत होंगे। पाकिस्तान के शहर शोरकोट कैंट में स्कॉटलैंड के फलाही तंजीम पाकिस्तान सोशल क्लब के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें मरीजों की आंखों के ऑपरेशन किए गए और मरीजों को फ्री अद्वियात भी दी गईं। मज़ीद तफसीलात खालिद चौधरी की रिपोर्ट में। फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम होने वाले 3 रोज़ा फ्री आई कैंप में मरीजों की आंखों के ऑपरेशन किए गए। पाकिस्तान सोशल क्लब स्कॉटलैंड इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस कैंप में इलाका भर से सैकड़ों मरीजों ने शिरकत की, जहां माहिरीन अमराज चश्म ने इनकी आंखों का चेकअप किया। इस मौके पर बेशतर मरीजों के ऑपरेशन किए और अद्वियात भी दी गईं। पाकिस्तान सोशल क्लब के चेयरमैन फरीद अंसारी का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इंसानियत की खिदमत ज़रिया निजात है। हम हर साल पाकिस्तान में रमजान के माह में गरीब और नादार लोगों में राशन और उनके अखराजात के लिए नकदी का बंदोबस्त भी करते रहते हैं और अब 2022 में हमने पहला फ्री आई कैंप का इनाकात किया है, जिसमें गरीब और नादार लोगों की आंखों का चेकअप से लेकर ऑपरेशन और तमाम मराहिल फ्री में किए गए। उनका मजीद कहना था कि आंखें अल्लाह पाक की एक अजीम नेमत हैं। लोगों की अक्सरियत इसकी हिफाजत के लिए खुसूसी एहतमाम नहीं करते हैं। इस कैंप के जरिए हम न सिर्फ गरीब और मुस्तहिक लोगों को मुफ्त तिबी इमदाद मुहैया करते हैं, बल्कि उनकी आंखों की हिफाजत की अहमियत को भी उजागर करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर साल माह रमज़ान में पाकिस्तान के अंदर और इसी तरह दूसरी जगहों पर भी हम खिदमत और पूरा अखराजात राशन वगैरह देते थे, और आज ये हमारा नए साल 2022 से ये पहला एक स्टेप और हमने लिया है कि आँखों का ऑपरेशन। आँखें बड़ी नेमत हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी गरीब जिसके पास इतना सरमाया नहीं है, पैसा नहीं है, और बस ये अल्लाह ताला इसकी हमारी कबूल करे और यही हमारी दुआएं हैं और यही खिदमत खातिर। मुस्तहिक मरीजों का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये पाकिस्तान सोशल क्लब स्कॉटलैंड इंटरनेशनल का एक अच्छा इकदाम है। इससे गरीब और नादार लोग जो अपनी आंखों का इलाज नहीं करवा सकते वो अब यहाँ से फ्री इलाज करवा सकते हैं। ये फ्री आई कैंप 327 में लगता है, तो हज़ारों मरीज़ गिरदोनवा से आते हैं और यहाँ से चेकअप करवाते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका काम है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुस्तहिक मरीजों ने जहां मुफ्त इलाज की सहूलत को सराहा और कहा कि आंखों के हवाले से मुकम्मल आगाही जरूरी है। इस तर्ज के कैंप जरूरी हैं क्योंकि आवाम का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत की वजह से इलाज से महरूम है। ऐसी सूरत हाल में ये इकदाम लायके तहसीन है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए।